मनी प्लांट का और एक पत्ता मैंगो का, तो मनी प्लांट का एक पत्ता ज़्यादा कार्बन लेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन देगा. So whatever you learn, you can share with your friends, either school, either where you are going to play. Doesn't matter he is interested not in. Okay, thank you very much. This is your certificate. जब आप इसको देखते अब इसको टच करोगे, देखिए इसने अपनी लीव्स बंद कर दी. इसका मतलब है ये डर रहा है, हमसे डर रहा है कि इट इज मीन्स इट इज रिप्लाइंग टू स्टिमुलाई. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीड द पेपी कैम. तो फ्रेंड्स, आ चुका है एक नया दिन और एक नई सुबह आ चुकी है. तो फ्रेंड्स, अभी एक नेचरिस्ट वाला सेशन है, वो मैं अटेंड करने जा रहा हूँ. उसमें हमें कुछ नेचर के बारे में बताएंगे, एनवायरनमेंट के बारे में. तो चलिए देखते हैं कि उधर हमें वो क्या क्या बताएंगे. Somewhere in the jungle, village, near river, near beaches, it's all environment. You can look, what you can see, even the sky, cloud is a part of environment, nature. So you should know about surrounding of you. So like here you can see, including the kite is flying. So mountain, jungle, grasses, clouds and birds. Maybe you can see some butterfly. That is also part of the nature. So if you can see the water, it is part of nature. So commonly what you can see around you, it's nature. So we will know about nature. So we will begin with where we are standing. So we are standing over lawn, either you can say grass. So you can think what is grass. So if you, I will commonly say, we can walk over the grass because it has tiny stump, tiny leaf, tiny everything. And second thing, we will look the bushes. It is plus minus our height. Bushes and the plants. Yes, yes. Suppose first the grass, we can walk over grass. And second is the bush. It is plus minus about us, मतलब in our height. तो bush का क्या है कि बड़ा भी हो सकता है, but we can't climb in this bush. And tree means you can climb the tree. It means it has very strong stump. Clear? Grass, bush, tree. You can see it has dark grey या blackish bark. It is rough, not smooth. Then you can see the leaves. It is long, and if you look at here, this is basically jackfruit. Right now you can see full jackfruit, but you can see the bark. It is pale and smooth, and it has oval leaves, oval, and color wise it is dark. So this is the face of the tree. The main stump, main bark, main जो trunk है इसका, this is the face of the tree. So we can recognize, okay, this is mango, then we can go the leaf, top check, then we can go other tree, bark, then you can see the leaf. समझ में आ गया? One thing. You can differentiate, उसका bark dark है, rough है, इसका smooth है, soft है. Then writing, it is bigger than that. It has light color. आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं. Both are green, but slightly different. Okay, so that is the difference. And फिर इसके ऊपर जाएंगे तो you can see the seed. Seed is like fruit. So it's different. तो इसमें जो lining है, it is down. It's like a track, and it peel out like this.
So it is called pride of India. Is a legislative species. It's good for flowering. तो ये हो गया 3 tree का differentiation. उसके बाद we should know क्या plant is sensitive. क्योंकि if you are touching, it is not moving, it is not reacting. But some plants are very sensitive. So I can come here. You can see this plant here. Yes, What's this I plant? have seen mimosa. It's a mimosa. Basically, touch me not plant. You can check. What happened? It closed its leaves. Yes, it means this is very sensitive plant. So it means all plants are sensitive. Few we can see, few we can't see. Means it is scaring. It is Yes, basically when we are touching, it is going to sleep. Sleep then after mode. some time will it open? Yeah, after 15 or 20 minutes it will open again. So this is the indicator all the plants are very sensitive. कोई दिख रहा है कोई नहीं दिख रहा है. That is the only thing. How we get water? देखो no देखो मेन सोर्स ऑफ वाटर इज सी से वेपोरेशन होके क्लाउड बनेगा. क्लाउड टचेज हिमालयाज या हिमालय हिल, तो देन इट विल बिकम रेन वाटर. आइदर इट फ्लो थ्रू रिवर, आइदर इट विल बिकम स्नो. एज ए स्नो it will again melt and then river will flow. And third, the water will go into the ground. So we will call it groundwater. And we can pump it to well या motor. But water sources is sea and rain. Then it will come by lake, by river, by pond, by underground. Clear? Main source is rain and sea. Then we will get to river, to lake, to ground. And more life is based on water. Like इसमें frog मिलेगा, fish मिलेगा, and small insect they are flying is called dragonfly or dragonfly. ऐसा होगा. तो water is the main life system for all kind of animal. या animal के अलावा birds. प्लस ऑल क्रिएचर. एनिमल कह लें तो भी ठीक, बर्ड्स कह लें तो भी ठीक. ऑल यानी कि जितना भी जीव है जो लाइव है, वो इंसेक्ट, फ्रॉग, मैमल्स मतलब आदमी, घोड़ा, गाय, भैंस, सब इस पर डिपेंड है. जैसे ये पेड़ है, बिकॉज इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रंक, तो वी कैन क्लाइंब, मंकी कैन क्लाइंब. बट जो बुश होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा कि वी कांट क्लाइंब. बट स्मॉल मंकी कैन क्लाइंब. तो हम कंपेयर करते हैं टू अस, वी कांट क्लाइंब ऑन द बुश. तुम क्लाइंब करेंगे तो यस, हाँ, गिरा देगा. क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है पर ट्री के बराबर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ग्रास से स्ट्रॉन्ग है. ठीक. ट्री मतलब हमारा वेट से आता है. हाँ, हमारे से कई ह्यूमन्स का एक साथ भी कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है कुछ सपोर्टिंग प्लांट. सपोर्टिंग प्लांट हो गया जैसे ये, और क्या है, ये बेल है, इट्स कॉल्ड क्रीपर. क्रीपर विल क्रीप टू ट्री. इसका रूट जो है ऐसे करके इसके बार्क से क्लाइंबर विल क्लाइंब फ्रॉम हियर, it will go directly upward. Creeper will be creep. तो उसको वो चाहिए होगा, कुछ सहारा चाहिए होगा. देखो ऐसे करके That's why it's called creeper. Climber अगर दिखेगा, I will show you. Climber will. This is climber. ये वाला पत्ता दिखा, 2 पत्ते वाला, इस पेड़ पे. इस पेड़ के राइट में जो है क्रीपर है, जिसका 2 लीव्स आती जगह, वो सीधे ऊपर जाएगा. Then it will capture whole tree from top. No, this is climber. ये सीधी जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे. It will hold the tree from top. उसमें फिर ये एक्सपेंड करेगा. इसको स्टिक नहीं है, समझ गए.
जैसे आप जो भी वेन्स होती हैं, मैम ये नहीं है टच में, सिमिलर टू दैट। नेचर में एक प्लांट के पत्ते और कई प्लांट के पत्ते सेम होते हैं। इट इज़ फॉर प्रोटेक्टिंग ओरिजिनल वन। एक है फर्स्ट ट्री, जो वाइट वाइट क्लाइंबर है, इसको बोलते हैं पैरासाइट। जितने भी फाइकस फैमिली है, पीपल, बर्गर, जो रिलीजियस भी है, वो ऑलवेज ग्रो ऑन द फर्स्ट ट्री, यानी कि एक पेड़ पे, एंड देन द रूट विल कम डाउन लाइक दिस, ऐसे नीचे तक जाएगा। देन स्लोली इट विल किल द प्राइमरी ट्री, और फिर प्राइमरी ट्री चाहे 100 ईयर लगेगा, फिर ये जो फाइकस का पेड़ है ये बड़ा हो जाएगा और दिस जो फर्स्ट ट्री है मर जाएगा। सारे फाइकस पैरासाइट होते हैं। कभी कभी तुम पुराने बिल्डिंग हो उसमें भी उग जाता है, पीपल, बरगद, ये सब। वो क्या करता है, कभी कभी वहाँ पे सपोर्ट लेता है। जैसे यहाँ पे कोई छोटा सा वो रहा होगा कप टाइप छोटा, उसमें वो सीड ग्रो किया, तो हल्के हल्के ऐसे पर्टिकुलर करना है। इस तरह का जो भी पेड़ होगा इट इज कम अंडर फाइकस, इट्स कॉल्ड पैरासाइट। ये पहले पेड़ को मार देगा, बट इट विल टेक 100 ईयर्स। ऐसा नहीं कि एक दिन में मार देगा, तो ये होगा। बाकी जो क्रीपर है वो सेम क्रीपर ये भी है, इसको भी चल रहा है। वो भी क्रीपर है जो बड़े पत्ते वाला उस पेड़ पे है, वो क्रीपर क्लाइंबर देख लिया। और ये पैरासाइट का है जो ऐसे उगेगा, हमेशा ऐसे उगेगा। इसके टिप पे वो ग्रो कर जाएगा और वो उस पेड़ से ही मिनरल लेगा। जैसे इस पेड़ को मिट्टी से मिलना है या घास को मिट्टी से मिलना है, तो जो इसमें पैरासाइट उगता है इस पेड़ की टिप पे उग सकता है, वो क्या करेगा, इस पेड़ से ही मिनरल लेगा। उसको मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से लेगा, वो पेड़ से ही लेगा। समझ में आ गया? क्योंकि हर किसी को मिनरल्स चाहिए, वो ग्राउंड से मिलते हैं। कुछ प्लांट दूसरे प्लांट से मिलेंगे, जो सपोज कीजिए एक टैप आपका बाथरूम में है, एक टॉयलेट में है, एक कहीं भी लगा सकते हैं, पानी सब जगह जाएगा, पर ओरिजिनली पानी कहाँ से आएगा आपको पता है। तो ऐसे ही कुछ प्लांट दूसरे से चोरी कर देते हैं उसके खाना। सपोज टिफिन उनकी मम्मी नहीं बना रही है, वो खरीद रहे हैं, या ऐसा सोच लो किसी से बोरो कर रहे हैं और वापसी नहीं दे रहे। तो ये जो उधर ट्री पे, तो इसने उससे मिनरल्स ले लिए। देखो, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, या तो खाना डायरेक्ट मिट्टी से ले। जब कोई छोटा होगा, उसका स्टमक भी छोटा है, तो वो छोटा पेड़ से ही लेगा। 100 साल के बाद, 50 साल के बाद ये बड़ा होगा, इसको ज़्यादा मिनरल चाहिए, तो इसका रूट तब तक ज़मीन में पहुंच जाएगा। फिर वो ज़मीन से भी लेगा, उस पेड़ से भी लेगा, फिर वो पूरी तरह से उस पेड़ के जितना मिनरल वो पेड़ ले रहा है उसको ख़त्म कर देगा, हल्के हल्के के। फिर वो सूख जाएगा और वो डेड हो जाएगा, पर वो जिंदा रहेगा क्योंकि तब तक उसकी रूट ग्राउंड में फैल चुकी है। फिर वो डायरेक्ट ग्राउंड से लेगा। ठीक हो गया? वो टैडपोल है काले से, ये देखो, ये लीफ के पास, लीफ के नीचे पानी में ब्लैक ब्लैक से नहीं है, पतले पतले से। इनका जो टैडपोल है या फ्रॉग है, इसका लाइफ साइकिल छोटा है। जैसे हमारा 80 साल की एज है, फ्रॉग का कम होगा, गाय का कम होगा, या बिल्ली का कम होगा, डॉग का कम होगा। ऐसी इनका जो साइकिल है एडल्ट होने का 3 महीने। जून में मेंढक बारिश हुआ, उसने अंडे दिए, पानी में अंडे देगा, अब ये टैडपोल बनेगा, फ्रॉग बनेगा। ये झाड़ी में, बुश में, लैंड में जाके ज़मीन के अंदर घुस जाएगा, बोरो करके अंदर घुसेगा, पूरा विंटर वहीं रहेगा। फिर समर में जब बारिश होगा तो बाहर आएगा। ये इनका साइकिल है, यानी कि एक, हाँ, क्योंकि इनका एज छोटा है। जैसे एक मच्छर का लाइफ स्पैन होता है 72 घंटे, इनका है 3 मंथ या 1 ईयर, क्योंकि उसमें एडल्ट हो जा रहे हैं। तो ऐसे ही आदमी का है 20 ईयर या 18 ईयर में एडल्ट होता है जब जॉब लगती है फौज में। वैसे कैट का अलग होता है। तो सारे जीव का अलग है। पक्षी का 1 साल है एडल्ट होने का एज, फिर लाइफ जाती है 12 साल 25 साल, अलग अलग। वैसे आप बटरफ्लाई देख रहे हैं छोटी छोटी, उनका भी साइकिल है यही। उनको नमी चाहिए,
कई को सूखा चाहिए। हाँ, तो ये यहाँ पे देखिए मनी प्लांट का और एक पत्ता मैंगो का। तो मनी प्लांट का एक पत्ता ज़्यादा कार्बन लेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन देगा कंपेयर टू ट्री के एक पत्ते की। समझ में आ गया? तो ज्यादा कौन सा देगा फिर? मनी प्लांट। हाँ, एक पत्ते के हिसाब से, पर क्योंकि इसमें तो हजारों पत्ते हैं तो ये ज़्यादा तो यही देगा। पर मनी प्लांट जगह कितनी लेगा? इतनी मान लो, इतने के कंपैरिजन में ये ज़्यादा देगा। पर अगर एक पत्ता या 4 पत्ते इसके 4 पत्ते इसके तो मनी प्लांट है। इसलिए मनी प्लांट घर में लगाते हैं। मनी प्लांट कोई लोग नहीं लगाएंगे, वो रबर प्लांट लगाएंगे। रबर प्लांट भी, और फिर तीसरा है फर्न। ये तीनों ही ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे, ज़्यादा कार्बन लेंगे। समझ में आ गया? कार्बन बोले तो जो हम निकाल रहे हैं ये कार्बन है, ये गंदी हवा है। पेड़ इसको लेके फिर ऑक्सीजन में बदल देंगे तो बैलेंस रहेगा। तो इसीलिए लोग घरों में रबर प्लांट, मनी प्लांट और तीसरा फर्न लगाते हैं। आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछिए। मैंने जहाँ पे रहता हूँ उधर एक ना प्लांट लगाते हैं जिसकी स्टेम अगर आप तोड़ोगे ना तो उसमें से ग्लू निकलता है। तो आपको पता है वो कौन सा प्लांट है? देखो फिर वही है, अभी या ग्लू या सैप बहुत से प्लांट में निकलेगा, सारे फाइकस में भी निकलेगा, सारे रबर प्लांट में भी निकलेगा। अब या तो रबर प्लांट होगा या फाइकस में से, क्योंकि ऐसे ही कुछ रबर प्लांट भी नहीं है, फाइकस भी नहीं है, उसको आँख कहते हैं, उसमें से भी सैप निकलेगा। एक दूधी वाला पेड़ होता है, उसमें से भी दूध निकलता है, दूध जैसा सैप बोलते हैं उसको। तो वो भी, तो बहुत सारे पेड़ों में सैप निकल सकता है। हाँ, हमने जब उसकी स्टेम तोड़ी ना वाइट सा कलर आता है, उसको छुआ तो ऐसा उसका हाँ, तो वो टेक्सचर ग्लू हाँ, जैसा। तो ऐसे में ना आप उसका फोटो खींचिए, एक गूगल प्लांट करके वो आता है, उसमें चेक करेंगे, एग्जैक्ट नेम निकल आएगा। उसमें क्या है, जिसमें सैप निकलेगा, फाइकस, रबर प्लांट, और तीसरा कुछ और पेड़ भी हो सकते हैं, उसमें एक दूधी, कूड़ा और आँख, इनका भी सैप अगर तोड़ते हैं तो वाइटिश सैप निकलता है। ठीक हो गया? चलो आपको वो फार्म में दिखाता है, बहुत स्मूथ है, यू कैन टच, बहुत स्मूथ होता है। ये रबर प्लांट में आता है। वैसे इसका नाम है अम्ब्रेला प्लांट, इसकी छाता सा बन रहा है, पर ये भी रबर प्लांट में आता है क्योंकि इसका वो बहुत स्मूथ है। और ये इस तरह का प्लांट सब मनी प्लांट में आता है। इसका भी जो ऊपर का लेयर है बहुत स्मूथ है। जिसकी लीव्स वाइट नहीं, येलो वाला, ये येलो, ग्रीन, ये सब एक ही है, क्योंकि ये पत्ते बड़े हो गए हैं तो ऐसा हो गया, छोटे हैं तो ऐसा। हाँ, ये मनी प्लांट में आता है। हाँ, क्योंकि ये स्मूथ है तो ये कार्बन ज़्यादा सोचते हैं। सो वट एवर यू लर्न यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, either school, either where you are going to play, doesn't matter he is interested not in. Maybe if you are telling him 10%, he will take 1%, is fine. 1% is enough. Then he can share 1% to others, maybe 0.5%. At least everybody can learn something new. Okay, thank you very much. This is your certificate. You can show your teacher as well. What you learn, अगर वो याद रहेगा तो you can write down. थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड, मैंने ताज कॉर्बेट में एक जूनियर नेचरिस्ट की एक एक्टिविटी की थी जिसमें मेरे को प्लांट्स से इन्वायरमेंट, नेचर के बारे में बताया गया था। तो उसमें जो सर थे ना, उन्होंने मेरे को ये मिमोसा प्लांट दिखाया था जिसको कहते हैं टच मी नॉट प्लांट और छुई मुई। जब आप इसको देखते, अब इसको टच करोगे, देखिए इसने अपनी लीव्स बंद कर दी। इसका मतलब है ये डर रहा है, हमसे डर रहा है कि इट इज रिप्लाइंग टू स्टिमुलाई। ये डर रहा है हमारे, जब हम इसको छुआ तो डर रहा है कि मतलब ये हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। मीन्स इट इज रिप्लाइंग टू स्टिमुलाई। और ये मेरे को एक वो भी मिला सर्टिफिकेट पार्टिसिपेट करने के लिए इसमें।
बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और प्लांट्स देख के भी मेरे को काफ़ी मतलब नेचर, ये जो नेचर सब कुछ बताए, बहुत अच्छा लगा देख के। मेरे को एकदम जोश आ गया, सब कुछ इतना अच्छा बताया है।